بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے نفرت اور تقسیم کی سیاست کے بخار کو توڑنا پڑے گا. ہماری رائے الگ ہو سکتی ہے لیکن سب محب وطن ہیں. بلاول بھٹو کا حیدرآباد کے سندھ میوزیم میں 9ویں شیخ ایاز میلے کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا ایک دوسرے کو غدار کہیں گے تو ملک کیسے چلے گا. نفرت اور تقسیم کی سیاست عروج پہ ہے اور ہمیں اس بخار کو اب توڑنا پڑے گا. اس میں آپ کا مدد کی ضرورت ہے. آپ کی مدد کے ساتھ ہمیں اس ہائپر پارٹیزن شپ ہائپر پولرائزیشن کی بخار کو توڑنا پڑے گا. ہر پاکستانی کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ بھی محب وطن پاکستانی ہو, میں بھی محب وطن پاکستانی ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا رائے الگ ہو, ہم ہر کسی کا حق یہ ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھیں, مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ذاتی دشمنی پہ اتر آئیں. وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ثقافت کو, اپنا تاریخ کو, اپنا زبان کو دبایا ہے. جب تک آپ ایک تھنکنگ ملک نہیں بنتے, اگر شاعر نہیں ہوتے, اگر رائٹرز نہیں ہوں گے, اگر آرٹسٹ نہیں ہوں گے, تو آپ کا سیاست ایسے ہی ہوگا جیسے آج کل آپ کو نظر آ رہا ہے. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ قربانیاں دینے والے فوجی افسران پر ناز ہے. پاکستان ایک گلدستہ ہے اور اسے مل کر سجائیں گے. کہتے ہیں کہ اقلیتوں کے ساتھ مل کر ہی پاکستان مکمل ہوتا ہے. جماعت میں الحمدللہ اقلیتوں کی نمائندگی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان مختلف مذاہب اور قومیتوں اور عقائد ایک اپنا یہ جس کو کہتے ہیں گلدستہ ہے, اور ہم بالکل اس گلدستے کو انشاءاللہ اور بھی آنے والے وقت میں سجائیں گے اور اس کو انشاءاللہ اور بھی خوبصورت بنائیں گے. اقلیتی کے ساتھ مل کر ہی پاکستان مکمل ہوتا ہے. میں خود جانتا ہوں ایسے ان فوجیوں کو, فوجی افسروں کو جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کی فوج کا وہ حصہ رہے ہیں, اور بڑا ماشاءاللہ انہوں نے ایک سچے اور عمدہ پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے. اور بہادر لوگ تھے جن کو میں کچھ ان میں سے فوت بھی ہو چکے ہیں, تو جو بڑے ہی میں نے انٹیگریٹی والے, آنیسٹ اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ وہ لوگ تھے جن کو میں جانتا ہوں. نون لیگ نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا. نون لیگ نے 2 روز کی توسیع کا مطالبہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا. چیئرمین نون لیگ الیکشن سیل اسحاق ڈار نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا. اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پولنگ کی تاریخ تبدیل کیے بغیر شیڈول تبدیل کیا جا سکتا ہے. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے صرف 3 دن دیے گئے. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے 7 دن مختص کیے گئے. کاغذات نامزدگی کے ساتھ مختلف دستاویزات جمع کرانا ہوتی ہیں. دوسری طرف سیاسی جماعتوں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع اور وصول کرنے کی تاریخ بڑھانے کے مطالبے پر الیکشن کمیشن نے بھی تاریخ میں توسیع پر غور شروع کر دیا ہے. الیکشن شیڈول کے مطابق امیدواروں کو کاغذات نامزدگی کے لیے 3 دن کا وقت دیا گیا. امیدوار 20 سے 22 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے. صادق سنجرانی قومی اسمبلی کے حلقہ 260 اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ 32 سے انتخابات میں حصہ لیں گے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے. چیئرمین سینٹ نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے. استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے. جہانگیر خان ترین سے چیئرمین چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی ملاقات ہوئی. سارہ احمد نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے. اویس کیانی سے تفصیلات جانتے ہیں. جی اویس. دیکھیں, جو جہانگیر ترین ہیں آئی پی پی کے جو سربراہ ہیں, یقینی طور پر پنجاب میں جو ایک نون لیگ ہے اس کے لیے یقینی طور پر ایک ٹف ٹائم آ رہا ہے, کیونکہ ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور دیگر معاملات بھی ہیں, لیکن دن بدن جو شمولیت کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اور چیئرپرسن جو چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر جو بیورو کی جو ہیڈ تھیں سارہ احمد, انہوں نے بھی استحکام پاکستان پارٹی میں جو شمولیت کا اعلان کیا. ان کی جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی ہے اور جہانگیر ترین نے جو ہے پارٹی مفسر پہنا کر سارہ احمد کو خوش آمدید کہا ہے.
मुलाकात में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओन चौधरी नुमान लंगड़ियाल भी मौजूद थे। तो आईपीपी जो है पार्टी वो पंजाब में यकीनी तौर पर एक टफ टाइम दे रही है नून लीग को, और अभी जो सीट एडजस्टमेंट और आगे जो मामला होने जा रहे हैं वो भी जो है सबकी नजरें जो है वो आईपीपी से ही हैं। लेकिन जहांगीर तरीन अपने तमाम साथियों के हमरा जो है वो काफ़ी मुतहरिक हैं और जो आम इंतखाबात के हवाले से काफ़ी मुतहरिक हैं, और जोड़ तोड़ के मायर समझे जाने वाले जहांगीर तरीन जो हैं वो मुसलसल जो है अपना काम कर रहे हैं, सियासी काम कर रहे हैं, और अगले कुछ दिनों में भी अहम जो है लोग इस पार्टी में जो है वो शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। ठीक है अवैस, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई काले करतूतों की वजह से जेल में है। जेल में कैद लीडर बाहर जाने के लिए दबाव डलवा रहा है। शर्जील मेमन कहते हैं पीटीआई की आदत अब भी मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही है। एक लीडर कहते हैं कि उन्हें क्यों निकाला, वो लीडर बदला लेने और मुकदमात खत्म कराने आए हैं। और आपको ये भी बता दूं पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी, इसमें भी भले पॉलिटिकल डिबेट की जाए कि जो मंशूर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको पाए तकमील के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने उसको विनाश में पाए तकमील किया, लेकिन उसके लिए आगे बढ़कर काम किया है। और कोई भी जमात आपने देख लिया होगा, बाकियों के मंशूर और बाकियों के इलेक्शन के नारे, किसी ने कह दिया जी कि मैं इक़्तिदार में आके लोगों के ये मसाइल हल कर दूंगा, इतने लाख घर दे दूंगा, इतनी करोड़ नौकरियां दे दूंगा। क्या हुआ? सिवाय कौम को करोड़ों के कर्जे बढ़ाने से, अरबों के कर्जे बढ़ाने से, भाई को भाई से लड़ाने की सियासत करने से, इंतकाम की सियासत करने से बाकी इन पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ नहीं दिया। तो वाहिद जमात है जो सबको जोड़ना चाहती है, जो भाई से भाई को जोड़ना चाहती है। कौमें इस तरह नहीं होती कि उनको कौमों को बांटा जाए, उनको आपस में लड़ाया जाए, उनको पोलराइजेशन की तरफ ले। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। कराची के लिए जनमाही एडजस्टमेंट का बोझ बढ़कर 6.15 रुपये हो जाएगा। कराची के लिए 1.52 रुपये का सरचार्ज मिलाकर इजाफी बोझ बढ़कर फी यूनिट 7.67 रुपये बनेगा। आइंदा माह कराची के लिए एडजस्टमेंट का बोझ एक साथ मिल जाएगा। तफसीलात अवैस कियानी से जानते हैं। अवैस बताइएगा। देखें कि इलेक्ट्रिक वाले जो है सार्फिन, बिजली के सार्फिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि यकीनी तौर पर जो इनकी जो सरमाई एडजस्टमेंट का सिर्फ जो तखमीना है वो 6.15 का है। इसी तरह जो सरचार्ज को मिलाकर जो इजाफी जो इनको बोझ पड़ेगा उसको टोटल कैलकुलेट करके वो 7.67 से भी ज़्यादा का बनता है। आइंदा माह कराची के लिए 4 मुख्तलिफ सरमाई एडजस्टमेंट का बोझ एक साथ जो है वो मिलाकर आएगा, और अप्रैल से जून 2023 की सरमाई एडजस्टमेंट में फी यूनिट 3.28 और इस सरमाई एडजस्टमेंट की वसूली के इलेक्ट्रिक सार्फिन से मार्च 2024 तक जो है वो होनी है। अक्टूबर और दिसंबर 2022 की सरमाई एडजस्टमेंट का इजाफा भी 47 पैसे बनता है, और ये फरवरी 2024 तक जो है इसका प्लान है। जनवरी से मार्च 2023 की सरमाई एडजस्टमेंट का इजाफी बोझ 1.25 रुपये है। जुलाई से सितंबर 2023 की सरमाई एडजस्टमेंट में इजाफा फी यूनिट 1.15 है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से ये इजाफी वसूलियाँ जनवरी से मार्च 2024 में जो है करने का प्लान है। कराची के लिए रवां माह से फी यूनिट 1.52 का इजाफी सरचार्ज जो है वो आयद होगा, और इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ये इजाफी सरचार्ज एक साल जो है वो नवंबर 2024 तक जो है वो लागू रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका अवैस। मुल्क में खाद के बहरान के खात्मे के लिए अहम पेशरफ्त, यूरिया का पहला जहाज कराची पोर्ट पहुंचा दिया गया है। वकास, इस मुतालिक भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ारत सनअत व पैदावार ने इस वक्त रबी सीजन के लिए तकरीबन 2 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद खाद की दरामद का फैसला किया है, और पहला जहाज खाद लेकर कराची पोर्ट पर पहुंच चुका है। वज़ीर तिजारत सनअत डॉक्टर गौहर एजाज का ये कहना है कि रबी सीजन के लिए काश्तकारों को बर वक्त खाद की फराहमी के लिए हुकूमत ने इक़दाम किए हैं, और खाद की जैसे सप्लाई शुरू होगी तो इससे मुल्क में खाद की जो कीमतें हैं उनमें भी कमी होगी, और रबी सीजन के लिए बिला तात्तुल किसानों को खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त गंदम की जो काश्त है वो जारी है, जिसके लिए खाद इंतहाई अहम है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वज़रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पता चले कि क्या हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नॉर्मली तो आपके पास आते हैं तो हमेशा बड़ी खुशी से आते हैं और ये होता है कि अच्छा है ज़रा आपसे बात हो जाएगी। आज सच्ची बात ये है कि ख़बर तो अच्छी लेके आए हैं लेकिन इतनी खुशी की साथ नहीं आए। हम बहुत ज़्यादा खुश होते अगर ऐसी सूरत हाल पैदा ही नहीं होती कि हमें यहाँ तक आना पड़ता। लेकिन बहरहाल ये रात को जो वाक़या हुआ उसकी सारी तफसील भी आपको बताएंगे कि कैसे ये हुआ। इसीलिए आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन वज़ीर आज़म ने सुबह ही इसके बारे में एक कमेटी तश्कील दी और ये कहा जी कि इसके ऊपर फौरी तौर पे इस मसले को हल किया जाए। वाक़या तो आपको मालूम है, ये लोग रवाना हुए थे और इस दौरान जब भी ये आते आते इस्लामाबाद तक भी पहुँचे तो इनसे पुलिस ने और इंतज़ामिया ने रब्ता किया और ये कहा कि जी आप मुख्तलिफ़ जगहों की इनको ऑफ़र की कि आप अगर सिट इन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे चले जाएं, जिसमें H9 का एक ग्राउंड ऑफ़र किया गया, फिर F9 का पार्क भी ऑफ़र किया गया। दोनों जगहों का इन्हें कहा गया कि वहाँ पे आप बैठें, हम हर तरह से आपका ख्याल भी रखेंगे और हर तरह से आपकी हिफाजत भी करेंगे। और इनको ये भी बताया गया कि हमें थोड़ी सी आपकी सिक्योरिटी से मुताल्लिक भी खदशात जो हैं लाहक हैं। अब इस वक्त आपके लिए ये भी पता होना ज़रूरी है कि पिछले कई दिनों से प्रेस क्लब के बाहर कुछ ख़वातीन और मर्द इसी इशू से मुताल्लिक बाकायदा तौर पे उन्होंने वो बैठे हुए थे और उनसे किसी किस्म की दखल अंदाजी नहीं की गई। पिछले 23 दिन से पिछले 23 दिन से वो वहाँ पे मौजूद थे और उनके साथ किसी ने कोई दखल अंदाजी नहीं की थी। तो ये एक सबूत है कि जी हुकूमत का कोई ऐसा इरादा या इंतज़ामिया या पुलिस का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो इसमें किसी किस्म की भी कोई किसी से सख्ती करती। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो लोग तो बलूचिस्तान से आ रहे थे, बावजूद इसके कि उन्होंने इतनी तकलीफ़ काटी और इतनी मुश्किल बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुँचे थे, उनकी तरफ से तो कोई ऐसी सूरत नहीं हुई। लेकिन पुलिस और इंतज़ामिया बहुत यकीन से, और इसकी शवाहिद भी मौजूद हैं कि कुछ ऐसे फरीक लोकली यहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जिसके बाद ये थोड़ी सी जो क्लैश है मुजाहिरीन के दरमियान और लॉ इन्फोर्समेंट जो पुलिस है उसके दरमियान हुआ और उसके बाद उनको गिरफ़्तार करना पड़ा। हमारी ये बड़ी क्लियर पोजीशन है और इसके लिए तमाम तर शवाहिद भी मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आईजी इस्लामाबाद को बुलाया, उन्होंने वहाँ पे भी यही चीज़ सारी तफसील बताई। ये भी बताया कि जी मुजाहिरीन पहले से भी मौजूद थे, ये भी बताया कि जो लोग बलूचिस्तान से आए उनकी तरफ से कोई ऐसी शरंगेज़ी नहीं की गई, लेकिन कुछ लोग जो मुकामी तौर जिन्होंने आने से पहले अपने चेहरे जो हैं वो ढांपे हुए थे, जो इस बात की इंडिकेशन थे कि वो चाहते हैं कि जब वो कोई ऐसी हरकत करें तो उनकी शनाख्त ना हो सके। वो ढांपे हुए चेहरों के साथ आए और जो भी फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने पथराव किया और दूसरी चीज़ें की, उसके बाद नेचुरली फिर जो फोर्स थी वो इस्लामाबाद में निगरान वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब ये मामलात होते हैं तो उसकी गुंजाइश को कभी रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि ये बहुत बेहतर होगा कि अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पे जाके अपना धरना दें जिसको हम फुली तौर पे प्रोटेक्ट कर सकें और आपके साथ कोई और आके दखल अंदाजी या कोई शरारत ना कर सके। बहरहाल ये जो मशवरा था वो उन्होंने नहीं माना और जब वो आगे आए तो फिर वही हुआ कि जो लोकल एलिमेंट था जो उसको एक्सप्लॉइट करने के इरादे से था, उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। ये तो मैं बिल्कुल ब्रीफली आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये वाक़या हुआ। अब जो आज प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे हम गए तो वहाँ पे जितनी भी ख़वातीन और बच्चों से हम लोगों से मिले
ان میں سے اکثر کا جو گلہ تھا میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. ان کا خیال یہ تھا کہ جی ہم پرامن طور پہ آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی قسم کی بھی ایسی صورتحال پیدا کرنے کا، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن لازمی بات ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، کہ ہمارا خود اپنا پوری کنوکشن یہ ہے کہ جو مظاہرین بلوچستان سے آئے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ ایسا کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے کیا جو یہاں پہ مقامی طور پہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے. بہرحال ان سے ساری گفتگو کے بعد اور آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر سے ساری رپورٹس لینے کے بعد ہم وزیر اعظم کے نالج میں لائے. اسی دوران وزیر اعظم سے ڈاکٹر مالک بلوچ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، انہوں نے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے بھی وزیر اعظم سے ریکویسٹ کی کہ جی اس ایشو کو فوری طور پہ حل کیا جائے. تو پھر وزیر اعظم کی ہدایت پہ یہ فیصلہ ہوا کہ تمام عورتوں اور بچوں کو بغیر کسی استثناء کے فوری طور پہ رہا کر دیا گیا. اسی طرح تمام ان مردوں کو جن کی شناخت ہو چکی ہے ان سب کو بھی فوری طور پہ ہم رہا کر چکے ہیں، تمام ان لوگوں کو. اور کچھ لوگ البتہ ایسے ہیں جن کی ابھی شناخت اور تفتیش کا عمل جاری ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں ہائی کورٹ نے اسلام آباد نے آئی جی اسلام آباد کو پابند بنایا ہے کہ صبح کل اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان کے بارے میں رپورٹ پیش کریں کہ ان کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے. ہم نے بھی آئی جی اسلام آباد کو کہا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ کل آپ کو مزید وقت نہ مانگنا پڑے اور آپ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کریں، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن سے بہت سی باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. ان کا جو اوریجن ہے اور ان کی جو شناخت ہے وہ بھی اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرے گی کہ کیا واقعی ان کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا وہ کسی خاص مقصد پہ کے تحت اس وقت وہاں پہ آئے تھے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہوئی. بہرحال چونکہ ان کا معاملہ ان لوگوں کی حد تک جن کو باقاعدہ طور پہ ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے، ان لوگوں کا چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے ہوتے ہوئے کہ ان کے بارے میں رپورٹ صبح پیش کی جانی ہے، ہمارا کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی مناسب نہیں ہوگا کہ ہم ان کے بارے میں ابھی کوئی بھی فیصلہ کریں. تو ان کے علاوہ تمام لوگ، اور ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے، میں یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو 90% سے زیادہ لوگ ہیں مرد. اسلام آباد میں نگران وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات کی جانب سے کہا گیا کہ مظاہرین سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی. 90% مرد حضرات ہیں ان کو بھی رہا کر دیا گیا، اور محض وہ لوگ جن کی آئیڈینٹیفیکیشن اور جن کی تفتیش کی. اسلام آباد میں نگران وفاقی وزراء اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ مظاہرین سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. حکومت کی طرف سے فواد حسن فواد نے بات چیت کی ہے، اور اگر عدالت حکم نہیں بھی دے گی تو جو بھی تفتیش اس وقت تک پولیس نے کی ہوگی اس کی روشنی میں یہ کمیٹی دوبارہ جا کے باقی لوگوں سے بھی ملے گی اور ان کا بھی فیصلہ کر دے گی. حکومت کی طرف سے بہرحال کمیٹی کو یہ مکمل کا انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کا بھی بہتر فیصلہ ہوگا. یہ وہ تفصیل تھی جو ہم چاہتے تھے کہ آپ کو بتائیں. جو سیپریٹ گریوینسز ہیں لوگوں کی، ان کی بھی تفصیل ہم نے نوٹ کر لی ہے. وہ گریوینسز انشاءاللہ ہم وزیر اعظم کے نالج میں بھی کمیٹی کے طور پہ لائیں گے، اپنی رپورٹ بھی اس کو پیش کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی جلد سے جلد بہتری کی صورتحال نکل سکے. کوئی چیز اور آپ کہنا چاہتے ہیں یا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ انگیجمنٹ ہو اور مسئلے کا ایک صحیح حل سامنے آئے. حافظ ماجد صاحب نیوز 1 سے. سر ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور اس ملک میں جو بھی جس کو بھی ضرورت ہوتی ہے، کوئی احتجاج کرتا ہے یا اپنا جائز حق مانگتا ہے تو وہ اس پر مکمل پابندی ہے. قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ ہمارا احتجاج کر اپنا حق مانگتے ہیں. تو ہم پچھلے کئی عرصے دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل
पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, ना महंगाई पे, ना कोई जायज़ हुकूक। तो इस खात्मे के लिए भी आपने बुलाया अमल मुरतब किया है कि लोग जो है पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड भी करवा सकें। देखिए, पुरअमन एहतजाज पे दखल अंदाजी नहीं हुई, 23 दिनों से चल रहा था, 23 दिनों से। जब तक ये एहतजाज चलता रहा तो उस पर इस्लामाबाद की पुलिस या इंतजामिया ने बिल्कुल कोई दखल अंदाजी नहीं की। सो आपका ये कहना कि जी किसी पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं है, ये गालिबन दुरुस्त बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पुरअमन एहतजाज या किसी भी किस्म का एहतजाज बहरहाल किसी कानून और कायदे के पाबंद होता है। हम लोग एक ख़ास हाल की किसी पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं है, ये गालिबन दुरुस्त बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पुरअमन एहतजाज या किसी भी किस्म का एहतजाज बहरहाल किसी कानून और कायदे के पाबंद होता है। हम लोग एक ख़ास सूरत हाल से गुज़र रहे हैं और उस सूरत हाल में जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो आप सब लोगों के नॉलेज में हैं। इंतज़ामिया, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास बहुत वाज़े और बहुत क्रेडिबल एविडेंस ये थी कि अगर किसी मेन स्ट्रीट या किसी मेन शाहराह पे ज़्यादा देर के लिए लोग इकट्ठे रहे तो उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया जाएगा और उसमें कोई ऐसा सानहा हो सकता है जो शायद पाकिस्तान के लिए एक रियासत की हैसियत से मुनासिब ना होता। बाज़ औक़ात रियासत को और हुकूमत को बहुत से इक़दामात, मैंने इसीलिए शुरू में कहा ना कि हम आज खुश दिली से ये बात नहीं करें, बाज़ औक़ात मजबूरी के तहत भी करने पड़ते हैं किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए। मैं बड़ी यकीन से कह रहा हूँ, मैंने अपनी इस ज़िम्मेदारी में आने से पहले अपनी सर्विस का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान में गुजारा और मेरा बड़ा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरा दिल बलूचिस्तान के साथ धड़कता है। तो मैं कोई गलत बयानी नहीं करूँगा। ये जो मजबूरन उनको ये कहा जा रहा था कि आप F9 पार्क में चले जाएं या H9 ग्राउंड में चले जाएं, वो उसी खदशे के पेश नज़र कहा जा रहा था और वो बहुत ही क्रेडिबल खदशा था। वो कोई खदशा ऐसा नहीं था जो हमारे किसी स्पेशल ब्रांच के लोअर एहलकार ने यहीं से बना के भिजवा दिया हो। वो एक बड़ा क्रेडिबल फियर था और ये बहुत ज़रूरी था कि ऐसी किसी सूरत हाल को पैदा होने से रोका जाए। ये तो वो है, वो जो खदशा था। उसके बावजूद किसी भी कार्रवाई का आगाज़, बावजूद इसके कि वो मुस्तकिल वो बैरियर्स क्रॉस कर रहे थे जो पुलिस और इंतज़ामिया लगा रही थी, वो इंतज़ामिया और पुलिस की तरफ से नहीं हुआ। पथराव का सिलसिला, जिस तरह हमने आपको बार बार, ये मैंने 2 मरतबा पहले भी कहा, उन लोगों ने किया जो उन बलूचिस्तान से आने वाले मुजाहिरीन में शामिल नहीं थे और यहाँ से अपने चेहरों को ढांप के पहले से आके शामिल हुए थे। उन लोगों ने नेशनल प्रेस क्लब के बाद ये काम शुरू किया, जिसके बाद ये अमल करना पड़ा। सो बिल्कुल एहतजाज की इजाज़त है और ऐसे इश्यूज़ पर जो ज़रा सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, बहुत रेस्ट्रेंट का भी मुजाहरा किया जाता है तमाम इदारों की तरफ से। लेकिन बाज़ औक़ात जैसा मैंने कहा कि हमें मजबूरी में भी कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मुर्तज़ा राय पब्लिक टीवी से। मुर्तज़ा राय जिससे आप इसकी बात करनी पड़ती है, लेकिन हमें एहतजाज तो वक्तन फ़ौक्तन नज़र आ ही रहे हैं काफ़ी अर्से से। तो एक बड़ा अच्छा जेस्चर आज हमें नज़र आया कि फौरी तौर पर एक कमेटी कायम कर दी गई और बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने बात भी की और फौरी तौर पर रिहाई भी हो गई। इसी तरह अगर हमें वज़ीर-ए-आज़म साहब एक कमेटी बना दें कि एक ओवरऑल मसले को देख लिया जाए कभी। और दूसरी बात ये है कि आगे इलेक्शंस आ रहे हैं और जिस तरह हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो एक उस सूबे में इलेक्शंस जो है वो काफ़ी मुश्किल होंगे। उस हवाले से भी कुछ सोचा जा रहा है कि सिक्योरिटी कैसी यकीनी बनाई जाएगी और फेयर इलेक्शंस कैसे उनका इंतज़ार कैसे यकीनी बनाया जाएगा। मेरे ख्याल में फवाद हसन फवाद साहब आपको बता चुके हैं कि न सिर्फ ये कि फौरी तौर पर जो एक क्राइसिस मैनेजमेंट थी और लोगों की रिहाई के लिए हमने जो इक़दामात उठाए, लेकिन जो उन ख़वातीन से और बच्चों से जो हमारी बातचीत हुई और लोगों से भी जो देरीना मसाइल हैं, उसके हवाले से भी कमेटी अपनी जो सिफारशात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के सामने रखेगी। तो ये है। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन की बात है, चैलेंजेस हर दफ़ा होते हैं। 2008 में भी थे, 2013 में भी थे,
2018 में भी थे और कई दफ़ा इससे भी सीरियस चैलेंजेस थे। तो हमारी जो रियासत की जो इस्तेदाद है इस तरह की मुश्किलात पर काबू पाने में वो ठीक ठाक है, हम उसका सामना करेंगे जी इंशाल्लाह। अशफाक मंगर साहब कैबिनेट टीवी से। अच्छा सर ये बताएं जो मुतलबात है जैसे आप बता रहे हैं कि ये इस सर्दी में ख़वातीन के साथ रखी गई है, बड़ी मुश्किल में है, तो इनके मुतलबात के हवाले से अभी तक पेशरफ क्यों नहीं हुई? मतलब मुज़ाकरात की कमेटी आज हमें मीडिया भी नज़र आया और हम एक्टिव हो गए, तो इस हवाले से सीरियसली क्यों नहीं उठाया गया? दूसरी पॉइंट जो अभी IG साहब बैठे हुए इसलिए हम करेंगे कि इस हवाले से ठीक है कुछ ऐसे अनासर होंगे कि वो इसको खराब करते या जो सिचुएशन चल रही है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम इतनी बढ़ गई है, पुलिस की मुसलसल नाकामी नज़र आती है, यहाँ तक कि 1-5 को कॉल करते वक्त 1 घंटा लगता है तभी वहाँ पे पहुँचते हैं, मतलब कि कोई जिसमें वो काम नहीं है। तो इस तरह के अनासर यहाँ की निशानदेही तो हो गई, चलो शुक्र है कि यहाँ से बड़ा अनासर से हम बच गए, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी अनासर यहाँ पे एजेंसियाँ या हमारी पुलिस क्यों नाकाम? मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू को अगर हम इस इशू पे फोकस रखें, इसको अंडरमाइन ना करें, वो IG साहब आपसे अलहदा बात कर लेंगे अभी निकलते हो, और वो एक ऐसा मसला है जिस पे आप लोग किसी वक्त भी IG साहब से मिल सकते हैं। इस इशू के ऊपर मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ने हमेशा से कोशिश की है एंगेजमेंट की, लेकिन आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बाज़ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनको हॉस्टाइल एजेंसीज़ भी और दूसरे जो हमारे ममालिक हैं वो भी एक्सप्लॉइट करने की भी बहुत सी कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई ग्रीवियंस सारी की सारी ग्रीवियंसेस गलत है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता। मेरा कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात लोगों को मिसडायरेक्ट भी कर दिया जाता है और बाज़ औक़ात लोग ऐसी चीज़ों पे भी यकीन कर लेते हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। हुकूमत का और रियासत का बहरहाल ये ज़िम्मेदारी है कि उन लोगों को इंगेज करे, और यही काम आज इस कमेटी ने वज़ीर आज़म के कहने पे किया है। हमारी जो सिफारिशात होंगी उनमें इंशाअल्लाह एक वे फॉरवर्ड भी होगा कि इस मसले को दूरअज़ तरीके से कैसे हल करें। रजवान अब्बासी साहब ABN न्यूज़ से। सर मेरा क्वेश्चन है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 3 ढाइयों से रोज़नामा औसाफ जो कि रियासती नज़रियाती बुनियादों पर मुस्बत साहब को फ़रोग़ दे रहा है, उनके चीफ एडिटर मेहताब खान साहब की रिहाइशगाह पर पुलिस ने हमला किया और काफ़ी देर वहाँ पर असला भी लहराते रहे और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। इस हवाले से 36 घंटे गुजर चुके हैं और इस वक्त तक पुलिस की जानिब से कोई ना तो जवाब दिया जा रहा है, दरख्वास्त दी हुई काफ़ी वक्त गुजर चुका है, कोई रिएक्शन नहीं दिया गया पुलिस की जानिब से। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी? मैं पहले भी उनसे भी ये रिक्वेस्ट की और आपसे भी मैं ये कहूँगा कि हम एक ख़ास मौजू पे बात करने के लिए आए हैं। ये इशू इंफॉर्मेशन से मुताल्लिक है, इसके बाद मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपसे बात कर लेते हैं। मुझे ना इस वाक़े की तफसील का पता है, ना हम इस पोजीशन में हैं कि इसका अभी कोई जवाब दे सकें। IG साहब भी मौजूद है, मुर्तज़ा साहब भी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम यहीं हैं, मैं, आप और IG पुलिस और कमिश्नर आपको इस पर तसल्ली जवाब देते हैं। पहले सोलंकी साहब आपसे और फवाद साहब आपसे मेरा ये सवाल है कि कल जब रियासती तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था बलूचिस्तान के जो हमारे भाई और बहन वहाँ से आए एहतजाज करने के लिए, इनको वहीं पर रोक के इनके मुतालबात जो भी थे वो क्यों नहीं सुने गए, यहाँ तक किसने उनको आने दिया, और इतना बड़ा यहाँ पे जो रात को इशू बना, उसके बाद जिन पुलिस वालों की जानिब से उन पर तशद्दुद किया गया और जो सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल है जिसमें डंडे से तशद्दुद करते हुए बाकायदा वो देखा भी जा सकता है, क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई आपने की है अभी तक? जी, जहाँ तक तो उसे एक सिंगल वीडियो है जो सोशल मीडिया पे है जिसमें एक शख्स जिसने सादा कपड़े, ये IG साहब सामने बैठे हैं, मैंने सबसे पहली बात ये की कि उस आदमी की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और उसका तयन होना चाहिए कि वो कौन शख्स है। शायद आप उसका जब तयन हो और उसकी हो तो शायद आपके लिए भी हैरानगी का बायस हो। मेरे पास चूँकि अभी नहीं है तो फिर जब वो हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के नॉलेज में ज़रूर लेके आएँ। देखिए, हम में से कोई शख्स भी ऐसा नहीं है अपने मिजाज और अपनी सोच के एतबार से जो किसी भी किस्म के मुजाहिरीन पे, ख़ास तौर पे एक दूर दराज के इलाके से, छोटे सूबे से आए हुए मुजाहिरीन के ऊपर किसी किस्म की भी तशद्दुद की किसी तरह से इंडोर्समेंट करने पे तैयार हो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ
کہ یہ شروع جو ہوا ہے سلسلہ وہ کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوا ہے جو بلوچستان سے آنے والے مظاہرین میں شامل نہیں تھے، اور اگر اس سلسلے کو وہاں پہ نہ روکا جاتا، اگر وہاں پہ ان لوگوں کو اریسٹ نہ کیا جاتا تو شاید وہ لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہیں وہاں تک کیوں آنے دیا گیا، باہر کیوں نہیں روکا گیا، اگر باہر روکتے تو پھر شاید آپ کا یہ سوال ہوتا کہ انہیں آپ اندر تو آ لینے دیتے، پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب ہمارے پاس ایک اتنی کریڈیبل ایویڈنس موجود ہو کہ اگر یہ کسی بھی مین شاہراہ پہ بیٹھے تو اس کو مس یوز کیا جائے گا، کیونکہ ورنہ اگر صرف احتجاج کو روکنے کا مقصد ہوتا تو جو لوگ 23 دن سے اسی ایشو پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیوں نہیں ہم نے اٹھایا۔ تو احتجاج کی تو اجازت تھی، لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر کے کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اس کو روکنا بہرحال ریاست کی ذمہ داری تھی اور وہ روکا گیا۔ تو اس کو ذرا تھوڑے سے پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں۔ عزیز علوی صاحب، آخری سوال صاحب، اس ساری سچویشن میں جو ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے ہمارے بہن بھائی یہاں پہ مارچ لے کر پہنچے، تو کیا وفاقی حکومت حسن بادشاہ صاحب اور مسلم صاحب بڑے ریلیونٹ ہیں، ان دونوں کے صوبوں سے گزرتے ہوئے وہ وفاق تک آتے ہیں، تو کوئی ایسا میکنزم ہمارا نہیں ہے کہ ہم انہیں کسی اچھی جگہ پہ ویسے انگیج کر کے یہ کہا جائے کہ جی آپ کی جو بھی ڈینسز ہیں وہ میٹ ہوں گے، وفاق آپ سے تعاون کرے گا، ہم چل کے آپ کے پاس آئے ہیں، تو وہ زیادہ مشاہدہ دلی ان کی طرف سے بھی ہوتی ہے، آپ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، تو اس پالیسی میں ملنا کیوں ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان ہو یا کوئی اور صوبہ ہو، ہر ایک کا پاکستان میں اور اسلام آباد میں آنے کا حق ہے۔ کسی کو روکنا کہ وہ یہاں پہ نہ آئے، میں تو اس کو بالکل جی میں آپ کی بات درست ہے۔ آپ یقین مانیں، آپ سے پہلے یہ ہم تینوں نے جس وقت ہم یہ کمیٹی بنی تو ہم نے یہ کہا کہ جی شاید یہ بھی بہتر تھا کہ جی ان سے وہیں پہ ان کو انگیج کیا جاتا ہے، کہ اس حد تک میں آپ کی بات کو بالکل درست، لیکن شاید بلوچستان کے حوالے سے جو خصوصی ایک خاص ریلیشن شپ ہے، شاید اگر روکا بھی جاتا تو اس کا بھی بات کا بہت ایک اور ٹوسٹ اس کو دینے کی کوشش کی جاتی جی کہ اب بلوچستان کے لوگوں کو اب وفاقی دارالحکومت میں آنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ تو ہم تو کھلے دل سے آنے بھی دینا چاہتے تھے، اور اگر یہاں سے جو دوسرے عناصر ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہ کرتے اور وہ آ کے نیشنل پریس کلب کے باہر پہلے سے 23 دن سے بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو کے بیٹھے رہتے تو آپ یقین مانیں کسی نے ان کو نہیں روکنا تھا۔ یہ تو ایک مجبوری کی وجہ سے جب باقاعدہ طور پہ ان میں شامل کی جو یہاں یہ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔